Okay. So before we start with the practical, one thing I'd like to make you clear. Mostly you would be aware of it, but then also see related to the passing criteria, you will be having 50 marks ka practical exam separately. One exam will be for the 50 marks, that will be for the practical. One exam will be of 60 marks, that will be your theory exam, and one will be for your 40 marks, that will be your internal examination. So all the three heads, you are supposed to clear them separately. Minimum 40% is your passing criteria. That means out of 40 you should score minimum 16, out of 50 you should score minimum 20, and out of 60 you should score minimum 24. ठीक है, you should score minimum 24. If you Sir, for 50, sorry, can you repeat the passing criteria again? इट इज 40%. तो जो 60 मार्क्स का पेपर होगा उसमें से मिनिमम यू शुड गेट 24. 40 मार्क्स का जो इंटरनल होगा उसमें से मिनिमम यू शुड गेट 16, एंड 50 मार्क्स का ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें मिनिमम यू शुड गेट 20. If you fail in any of the heads, then you will have to give the ATKT exam for that respective head. The most important thing, say जो 100 marks का तुम्हारा external है, which is divided into 60-40, okay, which is divided into 60 and 40. उसमें suppose तुम लोग अगर 40 में भी fail होता है, suppose, then your failing marks will be considered as 100, whereas तुमको एग्जाम खाली वो इंटरनल 40 का ही देना है, एग्जाम एक्सटर्नल का नहीं देना है 60 का भी, अगर इंटरनल में फेल हुआ तो. बट फॉर कैलकुलेशन पर्पज वो पूरा 100 में काउंट होता है. आई होप यू वुड बी अवेयर, वो जो 300 मार्क्स का कुछ तो तुम्हारा बैकलॉग का क्राइटेरिया है. ओके, तो उसमें अगर तुम 40 में भी फेल हुआ तो पूरा 100 मार्क्स काउंट होगा, 40 मार्क्स काउंट नहीं होगा. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. Passing in all the three heads separately is required. That means वो यहाँ पे 60 में से तुमको समझो 50 मिल गया और यहाँ पे 40 में से खाली 10 मिला, तो टोटल तुम्हारा 60 होता है, बट स्टिल यू विल बी कंसिडर्ड एज फेल इन दैट इंटरनल कंपोनेंट, बिकॉज वहां पे मिनिमम तुमको 16 नहीं मिला करके. ओके, रिगार्डिंग योर internal examination, there will be a test, say of around 20 marks. Remaining will be for your assignment. That assignment I will upload in the Teams maybe today or by tomorrow, so that in your Diwali break you can complete your assignment. Okay, so 20 marks का टेस्ट होगा, 20 marks का असाइनमेंट होगा. 60 marks का, as I told you कि it is still I also don't know whether you will be having online exam or offline exam, so we will not discuss about that part. Okay, fine. So we will start with the practical. We will be doing the practical in the programming language known as Scilab. Scilab basically is a mathematical software which is used to perform your complex calculations in an easier way. It's a programming language, so just like what you have for your C programming, C, C++. Some of you would have learned about Java also. So it is a programming language, but this programming language is basically used for your mathematical calculations. Okay, mostly it is used for that. If you are using your computer, that is your laptop or desktop, you can download it from Google.
If you are using a cell phone, no need to download the exe file, no need to download your Scilab. What you can do is, I will give you one this thing, web address, where you can directly type that web address in your browser and you can use the Scilab on cloud. ठीक है? अगर तुम लोग तुम्हारे सिस्टम में डेस्कटॉप या लैपटॉप में अगर वो डाउनलोड कर रहे हो, तो you first check your system का configuration, whether it is a 32-bit system or a 64-bit system. ओके, 32-bit 64-bit का डिफरेंस मैटर करता है, क्योंकि अगर तुम्हारा 32 बिट्स का सिस्टम है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट, तो तुम लोग को 32 बिट वाला फाइल सेटअप फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा. अगर 64 बिट का ओएस है तो 64 बिट को जो सपोर्ट करता है वो तुम लोग को डाउनलोड करना पड़ेगा. दैट यू कैन जस्ट गेट इट फ्रॉम द गूगल. वर्जन जो है Scilab का, that whatever version is available or whatever version तुम लोग उसको यूज कर सकते हैं. मेरे सिस्टम में when I will start that, you will observe कि मेरा वो 5.5.1 है. There is the updated version also, 6.6 का सीरीज का भी है, but I have not updated that because almost the functions are similar. ठीक है? So So, yes, so how do you spell Scilab? Scilab, SCILAB. SCILAB. Thank you, sir. See, now today I am sharing my entire screen. So, are you able to see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Now see, this is what is your Scilab. This is what जो भी cursor blink हो रहा है, जो तुम लोग को दिख रहा है, that is basically known as the console. ठीक है? And ऊपर you can see there are menus. Menus के नीचे there are some icons which you can use them. Say first file option में you can open an existing file, you can open an you can execute your program. Edit में you have cut, copy, paste, clear history, clear console. Control में resume, वो सब नीचे भी है, I'll tell you. Applications में you have sign notes, command history, variable browser means right side पे जो तुम लोग को दिख रहा है. See your screen, the screen is basically divided into 3 parts. One is your console, right hand side top पे you can see variable browser, और उसके नीचे you can see your command history. ठीक है? उसके नीचे you can see the command history, means which way the commands which were used by you, वो पूरा command history में दिखता है. और वेरिएबल ब्राउजर में तुम लोग को वेरिएबल का नाम और उसका डेटा टाइप दिखेगा. आफ्टर दिस menus you can see in the second line the first button is of your sign note. ये जो बुक और पेन जैसा जो दिख रहा है, that is your sign note. उसके बाजू में जो है, that is for opening in file. Then you have cut, copy, paste. ये जो brush है, that is for clearing the console. How to clear the console, that I will tell you when we will start with the small program. Then you have this print option, which we don't use it because अपने को किधर भी document का print नहीं लेना है. Scilab preference and Scilab demonstration. Scilab preference में जब तुम लोग click करेगा, तो you get a window of this kind. ठीक है? You get a pop-up window of this kind. इसमें बहुत सारा चीज है, but what we use basically is the fonts. तुम लोग उसका font change कर सकता है, उसका color भी change कर सकता है. Okay, so font का type and font का size अगर change करना है, तो Scilab preference में जाके you can change it. So this is what is a console. I will show you one more
दिस इज व्हाट इज योर साइनोड. साइनोड जब तुम वहां पे क्लिक करोगे, दिस वाज एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल विच आई हैड ओपन. तुम लोग जब यहाँ पे लेफ्ट पे जो बटन है साइनोड्स का, वहां पे अगर क्लिक करोगे तो यू कैन सी, डबल टैप करोगे तो साइनोड्स ओपन होते हैं. साइनोड्स मींस इट इज जस्ट लाइक योर नोटपैड, जहां पे तुमको प्रोग्राम को टाइप करना है. ठीक है, जहां पे तुमको प्रोग्राम को टाइप करना है. और यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे यू हैव योर एग्जीक्यूट का बटन, यू हैव सेव एंड एग्जीक्यूट का बटन. जब भी तुम लोग चेंजेस करोगे साइनोड्स में, अनलेस एंड अनटिल यू सेव इट, वो तुमको एग्जीक्यूट करने को नहीं देगा. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, अनलेस एंड अनटिल यू सेव योर फाइल, वो तुमको एग्जीक्यूट करने नहीं देगा. So whenever you are writing down a program in Synode, using Synode, so you have to first save it and then उसको execute करना. Execute मतलब क्या करता है वो? Execute मतलब वो उसको compile करके run करता है. Okay? Compile करके run करता है. Compile मतलब it will check कि तुमने as per the syntax of the programming language the things are written or not. एग्जीक्यूट मतलब उसको रन करके तुमको आउटपुट देगा. तो साइनोड्स इज अ प्लेस वेयर यू विल टाइप योर प्रोग्राम, यू विल सेव इट, यू विल एग्जीक्यूट इट, और उसका जो आंसर है वो तुमको कंसोल में मिलेगा. ठीक है, उसका जो आंसर है वो तुमको कंसोल में मिलेगा. यू कैन डायरेक्टली डू द कैलकुलेशंस, परफॉर्म द कैलकुलेशंस इन योर कंसोल, बट द ओनली थिंग इज कि जो भी तुम कंसोल में करोगे उसको तुम सेव नहीं कर पाओगे. इट इज जस्ट लाइक अ टेम्पररी मेमोरी. सी इफ आई राइट 2 + 3 and I press enter, I type 2 + 3 and press enter, so I get the answer as 5. 5 into 9, it gives me 45. 2⁵ gives me 32. So this is what is the calculation which has been done directly in the console. बट व्हाट इज द थिंग, कंसोल में जो भी तुम लोग टाइप करोगे वो आंसर मिलेगा तुमको एग्जीक्यूट करके, बट वो सेव नहीं होगा. वंस यू क्लोज दिस, पूरा चले जाएगा और यू जस्ट क्लियर द कंसोल. सी यहाँ पे ये येलो कलर का ब्रश दिख रहा है. ओके, येलो कलर का ब्रश दिख रहा है, उसके ऊपर टैप किया तो पूरा कंसोल को क्लियर कर देता है. दैट इज वो स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं. सो यू कैन नॉट रिट्रीव व्हाट यू हैव रिटन इन योर कंसोल. ओके, यू कैन नॉट रिट्रीव व्हाट यू हैव रिटन इन योर कंसोल. सो कंसोल इज फॉर योर टेम्पररी मेमोरी. तुम लोग को सेव करके बाद में भी यूज करना है, तो यू विल हैव टू डू इट यूजिंग योर साइनोड्स. साइनोड्स जैसे अपना नोटपैड होता है, इट इज सिमिलर टू दैट. This is the place where you will have to type your code. उसको सेव करके एग्जीक्यूट करो, you will get the answer in your console. ठीक है, this much is clear. Yes, sir. Now this console and your Synodes you can compare with your C programming language. तुम लोग जब C programming करते हो तो जो पार्ट में तुम लोग प्रोग्राम टाइप करते हो एक ब्लू कलर का पार्ट होता है, राइट? जहाँ पे तुम प्रोग्राम टाइप करते हो ब्लू कलर का पार्ट होता है, जहाँ पे टाइप करते हो, फिर तुम लोग उसको रन करोगे तो तुमको आउटपुट, तुम्हारा आउटपुट स्क्रीन में मिलता है, विच इज अ सॉर्ट ऑफ अ ब्लैक कलर का पेज. तो सिमिलर टू दैट यू हैव योर कंसोल. वहां पे जो ब्लैक कलर का पेज है जहाँ पे आउटपुट आता है, उसको साइलैब में अगर कंपेयर करना है तो यू कैन कंपेयर विथ योर कंसोल. और जो ब्लू कलर का पार्ट है जहाँ पे तुम लोग प्रोग्राम टाइप करते हो, दैट यू कैन कंपेयर विथ योर साइनोड्स. So again I repeat, Synode is a place where you will type your code, उसको सेव करके उसको एग्जीक्यूट करना है, और उसका जो आंसर है that you will get it in your console. कंसोल में जो भी तुम लोग टाइप करोगे वो टेम्पररी मेमोरी के हिसाब से वो ये है करके उसको क्लियर किया तो सब क्लियर हो जाता है, फिर वो रिट्रीव नहीं होएगा. अगर तुमको रीयूज करना है तो तुमको वो साइनोड्स में ही लिखना पड़ेगा, तो ही तुम उसको रिट्रीव कर सकते हो.
otherwise you can't retrieve it. और साइन नोट्स में क्या है, फर्स्ट यू हैव टू सेव योर मटेरियल एंड देन यू कैन एग्जीक्यूट के लिए वो जो प्ले का बटन है, सेव एंड एग्जीक्यूट, तुम लोग डायरेक्ट कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं और ये एग्जीक्यूट पे प्रेस करो। ऑरेंज कीबोर्ड से F5 भी प्रेस किया, ओके, कीबोर्ड से F5 भी प्रेस किया तो वो एग्जीक्यूट होता है करके। So this is what is related to your console and your sign notes. Again, I repeat, console में you can write it, you can do your calculations, it will give you the answer. But एक ही है कि वो तुमको line by line देगा ये। See, I can write like this: A equals to 6, comma B equals to 5, C equals to A plus B. So this is what is the output which I get for the things which I had typed in my console. But ये किधर भी सेव नहीं होता है, it is your temporary memory. अगर मैं इसको इरेज करूंगा तो वो इरेज हो जाएगा और उसको फिर रिट्रीव नहीं कर सकते। ठीक है। Second and the most important thing, as I told you in the beginning of the session, कि अभी जो हम लोग ये साइलैब का जो डिस्कस कर रहे हैं, कंसोल एंड साइन नोट्स, this is related to the software which you can download in your system. But if you are accessing the things using your cell phone, you don't have a system like laptop नहीं है, desktop नहीं है, don't pressurize your parents or your family members कि मेरे को अब लैपटॉप चाहिए। I am not insisting कि तुम्हारे पास लैपटॉप होना चाहिए। I am talking about only my subject. I am not talking about any other subject. That also you make it clear. क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में तुम लोगों को क्या इंस्ट्रक्शंस दिया है, I am not concerned with that. I am concerned only with my subject, what I am teaching. तो साइलैब का इसके लिए there is no requirement of a computer or a laptop. You can easily do it using your cell phone. सेल फोन में तुम्हारा जो ब्राउजर है, गूगल क्रोम है या दूसरा जो भी है, मोजिला और व्हाटएवर, तो यू जस्ट टाइप साइलैब क्लाउड। ओके, आई होप यू आर एबल टू सी दैट गूगल का सर्च इंजन, यू आर एबल टू सी, जहां पे मैं टाइप कर रहा हूँ। जस्ट ओपन द गूगल क्रोम का ब्राउजर, टाइप साइलैब क्लाउड। साइलैब क्लाउड टाइप करोगे तो यू विल गेट अ वेबसाइट cloud.scilab.in. okay, cloud.scilab.in. this is the site जहां पे you can use your Scilab on your cloud. so see, now you can see मेरा जो Scilab है वो क्लाउड में ओपन हुआ है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यू कैन सी कि वहां पे Scilab कोड करके लिखा हुआ है, राइट साइड पे यू कैन सी कि वहां पे रिजल्ट करके लिखा हुआ है। तो मैंने कोड टाइप किया, देन आई प्रेस दिस एग्जीक्यूट का बटन। एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करेगा तो वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके रिजल्ट के पार्ट में आंसर देता है वो। ठीक है, रिजल्ट के पास में वो आंसर देता है। मेनी टाइम्स ड्यू टू द नेटवर्क का इश्यूज, समटाइम्स इट हैपेंस कि वो एग्जीक्यूट करके बहुत टाइम तक वो आंसर नहीं आता है तुम्हारा रिजल्ट का सेक्शन में। बट नथिंग टू वरी अबाउट इट, यू कैन गेट इट इजीली। समटाइम्स वो लोग का सर्वर में कुछ प्रॉब्लम, मतलब वहां पे नेटवर्क का इश्यू होगा, कभी अपने इसमें नेटवर्क का इश्यू होता है, तो वो छोटा मोटा चीज होते रहता है। सो साइलैब क्लाउड में यू कैन टाइप द कोड इन द साइलैब कोड का पार्ट, एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करेगा तो वो बेसिकली प्रोग्राम को कंपाइल और रन करके उसका आंसर देगा यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन में। तो नहीं आ रहा है फॉर सम रीजन, लास्ट टाइम प्रैक्टिकल में वो आ रहा था,
तभी भी वो 2 सम के लिए आया, फिर नहीं आ रहा था, बट वो आता है ऐसा, तो नथिंग टू वरी अबाउट इट. ठीक है. जी, मैंने रीसेट पे क्लिक किया तो जो भी कोड लिखा था वो डिलीट हो गया करके. You would be seeing कि मैं वो DISP लिख रहा हूँ. DISP is basically your display statement which is used to display the output in the console. जैसा तुम लोग के पास printf होता है C programming में, similar to that we have the disp statement, that is DISP in Scilab. ठीक है. जैसा प्रिंट स्टेटमेंट है, printf स्टेटमेंट है C प्रोग्रामिंग में, similar to that we have a statement disp in Scilab. So this is used to display, okay, this is used to display the output in the output section. So this is what is the cloud, Scilab cloud, which you can use from any of the browser. खाली गूगल में जाके cloud, Scilab cloud टाइप करो, तो you will get a site cloud.scilab.in, जहाँ पे जाके तुम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं. And it is a free site in the sense खाली तुम्हारा डेटा कंज्यूम होगा और तुमको किसी को पे नहीं करना है इसके लिए किधर भी. एंड दिस इज व्हाट इज डेवलप्ड बाय IIT बॉम्बे पीपल. तो उसमें सिक्योरिटी में भी कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए यहाँ पे. ओके. फाइन. So what we will do is today we will start with some simple calculation का part, right? Like से अगर कैलकुलेटर ये चाहिए मेरे को, अगर कैलकुलेटर का फंक्शंस करना है एग्जीक्यूट यहाँ पे Scilab में, so what I will do, I will go to Synods. Okay, Synods, you can see यहाँ पे the file का नाम is given because I have already created that. अगर तुमको नया फाइल बनाना है तो what you can do is you can go to the console, then यहाँ पे डबल टैप करो launch Synods, तो वो ओपन हो जाएगा करके. ठीक है. So I am using the file which I have already opened. So today we'll be discussing basic calculator का जो functions है. So for that say I take two variables, a equals to 6, b equals to 5. One more thing, see, whenever you are learning your programming languages, what is the main important part? Programming पढ़ना है, so there are two important things which you have to learn as well as which you have to remember. What are the two important things? The two important things are, first is the logic which you will be using for writing down the code. Okay, first is the logic which you will be using for writing down the code. Second is your syntax of that programming language. Now I don't think it is required to explain what do you mean by the syntax of a programming language, but still, see, अगर मेरे को लिखना है how are you in English, okay, how are you, so how can I write? Suppose I want to ask Tejas, how are you Tejas today, so how will I write? English में अगर लिखना है तो I will have to use the letters from A to Z, और मेरे को वो सेंटेंस बनाना है how are you Tejas करके, right? Same thing, same sentence in the sense, the sentence with the same meaning I can write it in Hindi, I can write it in Marathi,
बट व्हाट हैपेंस इन दैट केस, मेरा सेंटेंस का मीनिंग तो सेम रहेगा, बट जो मैं जो वे में लिखूंगा वो चेंज हो जाएगा। अगर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो मेरे को A to Z यूज करना है, अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ तो मेरे को क ख ग यूज करना है। दैट इज व्हाट वी से, जो 12 खड़ी है हिंदी का वो मेरे को यूज करना है, बट आई कैन राइट डाउन द स्टेटमेंट विद द सेम मीनिंग। तो व्हाट इज द डिफरेंस, इंग्लिश में भी मैं सेम चीज लिख सकता हूँ, हिंदी में भी सेम चीज लिख सकता हूँ, मतलब दोनों का मीनिंग मेरा सेम है, बट द वे इन विच द थिंग्स आर रिटन, एक जगह पे मैं A to Z लेटर्स यूज करूंगा, हिंदी में लिखना है तो मैं क ख ग यूज करूंगा, क्योंकि ये जो ABCD है ये मेरा इंग्लिश लैंग्वेज का सिंटैक्स है, उसमें जो कैरेक्टर्स अलाउड है वो ABCD है, हिंदी में जो कैरेक्टर्स अलाउड है वो क ख ग है। तो जो अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द लैंग्वेज तुम्हारा जो कैरेक्टर्स विच आर अलाउड वो तुम्हारा चेंज हो रहा है। तो दैट इज व्हाट इज बेसिकली टर्म्ड एज द सिंटेक्स। और जो तुम लोग सेंटेंस लिखते हो जो मीनिंग के साथ, वो होता है तुम्हारा लॉजिक। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज XYZ, whether it is C programming or it is Scilab programming or you learn about the Java programming or any programming language you talk about, if you will try to learn like this, the things will become easy. Okay, things will become easy. Now see, a simple example I will give, like maybe some of you may not like that example, but it is very easy to understand. Suppose if you are making what some paneer ka vegetable with a gravy, okay, तो वो तुम्हारा जो बनाने का मेथड होता है उसका, और वही तुमको अगर वो नॉन वेज यूज करके बनाना है तो भी तुम्हारा मेथड सेम होता है। व्हाट इज अ सिंपल एंड बेसिक आइडिया, पनीर को निकाल के तुम वो नॉन वेज ऐड कर दो वहां पे, तो वो तुम्हारा उसका पैरेलल बन जाता है। तो जो भी तुम्हारा वेज का जो डिशेस है उसमें तुम, now the Harish is telling someone is removing him from the meeting, वो कैसे कर सकते हैं, एक मिनट। सर आपने सब परमिशन दे दिया है इसलिए ऐसा हो रहा है। Okay, fine. So I was telling कि अगर तुम लोग को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो लर्निंग अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क इफ यू फॉलो द सिंपल टेक्निक। दो चीज इंपॉर्टेंट है, आई सेड द लॉजिक फॉर राइटिंग डाउन द कोड एंड सेकेंड इज द सिंटेक्स which you have to follow. So now as I told you that today the first thing what we'll be doing is say to develop a calculator, simple अपना एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन एंड पावर, इतना ऑपरेशन हम लोग एक प्रोग्राम में करेगा। तो फॉर दैट आई टेक टू वेरिएबल्स AS6 BS5। नाउ सी अगर मैं इसको सी लैंग्वेज के साथ कंपेयर करता हूँ तो सी लैंग्वेज में जो सबसे पहला चीज है कि एवरी सेंटेंस और एवरी लाइन हैज टू एंड विद अ सेमीकोलन, राइट? I accept your loops and other things. Every statement has to end with a semicolon. That is what is the requirement of your C language. जो requirement यहाँ पे नहीं है, जरूरी नहीं तुमको सेमीकोलन डालना ही नहीं है at the end of each statement, ठीक है? Second thing, C programming में if you want to use any of the variable, okay, if you want to use any of the variable, तुमको उसको प्री डिफाइन करना पड़ता है with its data type.
ओके तुमको कोई वेरिएबल को यूज करना है तो उसको तुमको प्री डिफाइन करना पड़ता है विथ इट्स डेटा टाइप. दैट थिंग इज नॉट देयर इन योर साइलैब. तुमको वेरिएबल्स को प्री डिफाइन करने का जरूरत नहीं है. यू डायरेक्टली can directly use the variable as and when it is required. This makes this language much more simpler compared to your other programming languages. क्योंकि यहाँ पे जैसा सी प्रोग्रामिंग के साथ कंपेयर किया तो उसको प्री डिफाइन करने का जरूरत नहीं है. उसका जो डेटा टाइप है वो डेटा टाइप भी ऑटोमेटिकली वो ले लेता है. सिस्टम ही ले लेता है उसका डेटा टाइप. तो उसको तुमको कैरेक्टर है या नंबर है, इंटीजर है, फ्लोट है, वो सब डिफाइन करने का जरूरत नहीं है. ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड in your C programming, right? All these things are required in your C programming. तो उसको प्री डिफाइन करना है, बट यहाँ पे वो जरूरत नहीं है उसको प्री डिफाइन करने का. You can directly use the variables as and when they are required. Okay, so I take the value of A as 6, B as 5, C I take it as A plus B. Then I will write, and see now if you, I don't know whether you have observed, DISP is a function which is used to display the values on the screen. जैसा तुम्हारा printf होता है C प्रोग्रामिंग में, वैसा यहाँ पे DISP है, that is your disp statement. तो you can see अगर मैं DISP is a keyword मतलब this word has a predefined meaning. Okay, this word has a predefined meaning. तो उसका कलर चेंज हो जाता है, राइट? उसका कलर चेंज हो जाता है. तो कभी भी ध्यान रखो साइलैब में व्हेन यू आर यूजिंग दिस. और ये सब तुमको वो कंसोल में, सॉरी, जो तुम लोग क्लाउड में करोगे ना तो उसमें वो सब नहीं मिलेगा. तो वो थोड़ा क्लाउड, एक मिनट, लेट मी चेक, आई एम ऑल्सो नॉट 100% श्योर. हाँ, यहाँ पे वो कलर वगैरह चेंज नहीं होता है, क्लाउड में वो चेंज नहीं होगा. सो वो थोड़ा तुम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा. अगर तुम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो यू विल गेट अ लिबर्टी ऑफ दिस काइंड कि अगर तुम्हारा कोई कीवर्ड है, दैट इज वर्ड हैज अ प्री डिफाइंड मीनिंग, तो उसका वो कलर चेंज हो जाएगा. ठीक है, जैसे तुम लोग यहाँ पे DISP में देख रहे हो उसका कलर चेंज हो जाता, डिफरेंट कलर के साथ वो आ रहा है. सेकेंड थिंग, इसमें इट हैज एन एडवांटेज एज वेल एज इट हैज अ डिसएडवांटेज. अभी एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि अगर मैं देखो DISP के बाद ओपन ब्रैकेट डाला, DISP के बाद मैंने खाली ओपन ब्रैकेट ही टाइप किया था तो क्लोजिंग ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाता है. ओके, वो क्लोजिंग ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो ये इन सम सेंस इज एन एडवांटेज एज वेल एज इट्स एन डिसएडवांटेज. एडवांटेज क्या है कि तुम लोग को क्लोजिंग ब्रैकेट डालने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है. ठीक है. और डिसएडवांटेज क्या है कि यू विल हैव टू बी मोर केयरफुल रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ योर ब्रैकेट. मतलब वो पोजीशन मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तुमको एक आंसर चाहिए, वहां पे आंसर आएगा दूसरा. ठीक है. तो दिस इज व्हाट इज एन एडवांटेज. ब्रैकेट ओपन किया तो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट क्लोज भी होता है. एंड देन यू यूज विच एवर टाइप ऑफ द ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट यूज करो या सर्कुलर ब्रैकेट यूज करो, वो एक ब्रैकेट ओपन किया तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज भी करेगा. सी, अगर मैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट भी लेता हूँ, ये देखो स्क्रीन पे मैंने खाली एक टाइप किया तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो ओपन ब्रैकेट डाला तो ब्रैकेट क्लोज ऑटोमेटिकली हो जाता है. But the only thing is you have to take care related to the position of the brackets. ठीक है. अभी मेरे को टेक्स्ट लिखना है तो सिमिलर थिंग कोटेशन के साथ भी होता है. सिमिलर थिंग कोटेशन के साथ भी होता है. मैंने खाली एक कोटेशन ओपन किया तो क्लोजिंग कोटेशन ऑलरेडी आ गया. सम इज इक्वल टू
DISP-C, ठीक है। This 2 slash when I put line number 3 में you can see जो 2 slash डाला है, that 2 slash is the indication of a non-executable statement. ठीक है, that is basically for a non-executable statement. Okay, non-executable statement. I hope you understand what is the meaning of a non-executable statement. जो comment बोलते हैं हम लोग, comment statement, वो होता है non-executable. उसके बाद में कोई भी मैसेज डाल सकता हूं और वहां पे मेरे को कोटेशन डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरा नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है। बाकी सब जगह पे मेरे को अगर टेक्स्ट लिखना है तो मेरे को उसको कोटेशन में इंक्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में यू यूज अ स्लैश एंड एन एस्ट्रिक, राइट। लाइन नंबर 6 में यू कैन सी दिस इज हाउ यू राइट डाउन इन you can write down a non-executable statement in your C language, slash and asterisk, right? ये तुम लोग ने किया है कि नहीं किया है C लैंग्वेज में नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट? फाइन। So this is how you write it in your C language। और Scilab में हम लोग कैसा लिखते हैं, डबल स्लैश डाल के लिखते हैं। डबल स्लैश के बाद कुछ भी लिखो तो it basically becomes a non-executable statement that is generally used for writing down the comments. This comments, writing down the comments is not a compulsory thing, but it is advisable to write at an appropriate place as and when required in your big programs. When you are writing down the codes, बड़ा प्रोग्राम जब तुम लोग लिखते हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, नॉट नेसेसरीली साइलैब ही है करके, जब बड़ा प्रोग्राम लिखते हो तो इन दैट it is advisable कि you write down your comments at an appropriate place, so that what happens at a later stage when you just go through the code, see it is not कि every time जो कोड तुम लोग लिख रहे हैं वो एक सिटिंग में हो जाता है। एक सिटिंग में मतलब आज 2 घंटा बैठा तो 2 घंटे में तुम्हारा कोड कंप्लीट हो जाएगा, वैसा जरूरी नहीं है। आज 2 घंटे में तुम्हारा 20% काम होएगा, कल 20% काम होएगा, परसों 10% काम होएगा, समथिंग ऑफ दैट काइंड। So when you are doing a big program, when you are developing a big program, writing down a big code, writing down the comment statement is advisable, so that at a later stage when you just go through that part, तो comment statement से तुमको पता चलेगा कि वो चीज क्या कैलकुलेट हो रहा है वहां पे। ओके, so that is why your comment statements are advisable. Another thing, now line number 6 में देखो मैंने क्या लिखा है, लाइन नंबर 6 में मैंने क्या लिखा है देखो, सम। व्हेन आई राइट सम, उसका भी कलर चेंज हो गया। Yes, sir. Right, that means this Yes, sir. word sum is also a keyword. That means this has a predefined meaning which has been assigned to this word sum. Okay, this is a word which has a predefined meaning. That means तुम्हारा जो keywords है उसको as a variable use नहीं कर सकते है, ठीक है, वो याद रखो। I write product, प्रोडक्ट में मेरा उसका कलर चेंज नहीं हुआ, दैट मींस दिस प्रोडक्ट इज नॉट अ कीवर्ड। तो मेरे को किसी वेरिएबल का नाम प्रोडक्ट डालना है तो मैं डाल सकता हूं, बट आई कैन नॉट यूज द वर्ड सम एज अ वेरिएबल। डिफरेंस भी देखो मैंने लिखा तो कलर चेंज नहीं हो रहा है, दैट मींस इट इज आल्सो नॉट अ कीवर्ड। बट DIFF लिखा मैंने खाली, तो यू कैन सी उसका कलर भी चेंज हो गया प्लस वो ऑटोमेटिकली अंडरलाइन होके आ रहा है। तो दिस आल्सो मींस कि वो एक कीवर्ड है। सो इन सिंपल वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर कि तुम लोग कीवर्ड को
एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कीवर्ड को एज अ वेरिएबल तुम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इज दिस पार्ट क्लियर कि यू कैन नॉट यूज अ कीवर्ड एज अ वेरिएबल नेम। और जब तुम लोग साइलैब यूज करोगे तो जो भी कीवर्ड्स है वो तुम लोग को आइडेंटिफाई करके देगा विद डिफरेंट कलर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइलैब ऑन क्लाउड, वहां पे यू विल हैव टू वर्क अ बिट मोर, क्योंकि वहां पे ये टाइप का लिबर्टी नहीं है। फाइन। D equals to A minus B. Difference of A and B. Difference equals to D. DISP D. I'll write all the 5 operators together और एक साथ उसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। फिर मल्टीप्लीकेशन M equals to A star B. So product is equal to then D हो गया ना, F, that is your fraction A upon B. तो वहां पे I'll write division. E equals to A raised to B पावर। तो ये मेरा कोड हो गया। ओके, I'll write down the comment statement also. Product of A and B. This is value of A divided by B. Value of A raised to B. So this is what is the code. अभी मेरे को Control S I will press to save the program. Control S I will press to save the program. Then I will execute. Execute तुम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं और you directly press F5 from the keyboard तो भी चलेगा। Now see ये पूरा मेरा execute करके कंसोल में आंसर आ गया। सम इक्वल्स टू 11। मेरा A का वैल्यू 6 था, B का वैल्यू 5 था। तो 5 प्लस 6 प्लस 5 गिव्स मी 11। तो मैंने 2 डिस्प्ले स्टेटमेंट यूज किया था, तो अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर में वो प्रिंट कर रहा है। पहले वो मैसेज प्रिंट कर रहा है, उसके बाद उसका वैल्यू प्रिंट कर रहा है। डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन एंड द पावर। This is how I will get the output for my program. Okay, this is how I will get the output for my program. Is this clear? Again I will show, ये मैं येलो कलर के ब्रश पे क्लिक करूंगा तो मेरा कंसोल क्लियर हो जाता है। ठीक है, मेरा कंसोल क्लियर हो जाता है। अभी वापिस से मेरे को आंसर चाहिए तो आई हैव टू गो टू द प्रोग्राम, मेरे को उसको एग्जीक्यूट करना है। See, this time I have just pressed F5 from the keyboard, तो एग्जीक्यूट करके आंसर आ गया। तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए यू कैन प्रेस F5 फ्रॉम द कीबोर्ड और यू कैन क्लिक ऑन दैट प्ले का बटन which is there in the menu above, that is in the second line. Fine, this much is clear.
If anyone has any doubts, you can ask. If the things are clear, you can take the screenshot and keep of this code as well as वो जो output का part है. पहले इसका screenshot ले लो, then we will go to that output का part. Let me know once it is done. Okay. Now you can take the screenshot of this output. हेलो सर, वो टाइटल कैसे करने, नाम कैसे देने का वो टाइटल को, मतलब ऐसा आपने लिखा है ना SIC नोट्स का उत्तर, मतलब साइन नोट्स का ये जो फाइल नेम है वो, हाँ वो कैसे करने का? वो तो जब तुम लोग सेव करेगा ना फर्स्ट टाइम तो तुमको पूछेगा, जैसे वर्ड में कैसा होता है, ओके ओके, तुमको पूछेगा जब पहली बार उसको सेव करोगे तो वो तुमको पूछेगा कि कहाँ पे सेव करना है और क्या नाम से सेव करना है उसको. ये कंसोल का स्क्रीनशॉट लिया, दैट इज आउटपुट का. सी ये जो कंसोल का राइट साइड पे यू कैन सी योर वेरिएबल ब्राउजर. वहां पे यू कैन सी जितने भी वेरिएबल्स हम लोग ने वो प्रोग्राम में यूज किया था, ABCDMFP, all this 7 variables, name of the variables you are getting here. यहाँ पे उसका वैल्यूज भी है और उसका टाइप भी है. टाइप में बाय डिफॉल्ट वो जो भी नंबर है उसको डबल ही लेता है. डबल मतलब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. इसके लिए तुम लोग देखो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 11, वो 11 पॉइंट आ रहा है, 1 पॉइंट आ रहा है, 30 पॉइंट आ रहा है, 1.2 आ रहा है. तो दैट 30 पॉइंट डजंट मीन कि वो 30 के बाद फुल स्टॉप डाला हुआ है कि वो एंड कर रहा है जैसा हमारा इंग्लिश का लैंग्वेज में होता है. इट बेसिकली सेज इट इज 13 पॉइंट मींस वो उसको फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में ले रहा है. सिंस वो सब जीरो से पीछे, इसके लिए तुमको जीरो डिस्प्ले करके नहीं दे रहा है. से फॉर एग्जांपल इफ आई टाइप 2/3 तो यू कैन सी कि मेरे को आंसर क्या मिल रहा है, 0.666667. दैट मींस वो 7 डेसिमल्स तक का वैल्यू ले रहा है करके. ओके 7 डेसिमल्स दिखा रहा है और एक तुम्हारा 0 है, तो बेसिकली 8 डिजिट्स यूज कर रहा है. ओके वो बेसिकली 8 डिजिट यूज कर रहा है. तो 0 पॉइंट और पॉइंट के बाद वो 7 डेसिमल्स दिखाता है. अगर मैं 4/3 भी किया तो यू कैन सी कि वो पॉइंट के बाद 7 डेसिमल्स तक दिखाएगा करके. और उसका डेटा टाइप भी तुम लोग वेरिएबल ब्राउजर में यू कैन इजीली सी कि उसका जो डेटा टाइप है वो डबल ही ले रहा है एज अ डिफॉल्ट केस में. दो तुम लोग ने जो वैल्यू एंटर किया था वो इंटीजर था, बट वो सिस्टम में उसको स्टोर करता है डबल करके. दैट इज योर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन. जैसे सी प्रोग्रामिंग में तुम लोग फ्लोट लेते हो ना, एग्जैक्टली सिमिलर टू दैट. int you take for your integer numbers, float you take for your decimal numbers. So float में तुम लोग को डबल भी होता है. डबल is also a data type which is used to store numbers with decimal point. ठीक है. और वो पॉइंट के बाद कितना डेसिमल्स डिस्प्ले करता है, 7 डेसिमल्स तक वो डिस्प्ले करेगा पॉइंट के बाद. कमांड हिस्ट्री क्या होता है, नो सी यू कैन कम टू दिस. कमांड हिस्ट्री का पार्ट में वो तुमको डेट और टाइम के साथ उसका हिस्ट्री दिखाता है कि तुमने कौन से दिन क्या क्या कमांड्स टाइप किया था. बट ये जो दिखाएगा वो खाली जो तुमने कंसोल में डायरेक्टली टाइप किया है वही दिखाएगा.
तुम साइनोट्स में कोड लिख के उसको एग्जीक्यूट करके जो आंसर आएगा वो तुमको कमांड हिस्ट्री में नहीं दिखाएगा। सी अभी मैंने 2/3 अभी जस्ट टाइप किया था तो यहाँ पे 2/3 दिखा है, उसके बाद 4/3 दिखा रहा है। a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू a प्लस b। जब वो जो हम लोग ने स्टार्टिंग में किया था डायरेक्टली कंसोल में किया था वो है। ये जो आंसर है कंसोल में, ये सम डिफरेंस डिवीजन, वो तुमको कमांड हिस्ट्री में नहीं दिखाएगा क्योंकि वो साइनोट्स में लिखा हुआ कोड है जिसका वैल्यूज है एग्जीक्यूट करने के बाद उसका वैल्यूज जो मिला वो है, इसके लिए वो कमांड हिस्ट्री में नहीं दिखाता। ठीक है, तुम लोग कमांड हिस्ट्री को भी क्लियर कर सकते हैं। एडिट, हाँ सी एडिट में जाके क्लियर हिस्ट्री करो। आई जस्ट क्लियर द कंसोल, तो मेरा कंसोल क्लियर हो गया। क्लियर हिस्ट्री किया तो सी हिस्ट्री में जो भी था सब क्लियर हो गया। डिड यू ऑब्जर्व दैट? हिस्ट्री, कमांड हिस्ट्री में जो भी था वो क्लियर हो गया अगर मैंने एडिट में जाके क्लियर हिस्ट्री किया तो दैट मीन्स कि जो भी वेरिएबल्स में मैंने वैल्यूज लिया था, जैसे a का वैल्यू 6 था, b का वैल्यू 5 था, जो कंसोल में हमने लिया था पहले, वो सब क्लियर हो जाता है। और जब तक तुम लोग कमांड हिस्ट्री क्लियर नहीं करोगे तब तक वो वैल्यूज तुम्हारा वैसे का वैसे ही रहेगा। सी आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 8, a प्लस b मेरे को 15 आ गया। ठीक है, अभी मैं कुछ ये करता हूं, मैं दूसरा वेरिएबल्स ले लेता हूं। c इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 5, c इंटू डी। अभी मैं a प्लस सी करेगा तो सी a में क्या था 7 और c में क्या है 3, तो 7 प्लस 3। तो जब तक मैं ये कमांड हिस्ट्री को क्लियर नहीं करता हूं और मैं ये साइलैब का विंडो को क्लोज नहीं करेगा तब तक सी अगर मैं कंसोल को क्लियर भी कर देता हूं तो भी यू कैन सी कि अगर मैं a प्लस सी लिखा तो मेरे को आंसर मिलेगा क्योंकि मेरा इंटरनल मेमोरी में, कंसोल का मेमोरी में वो वेरिएबल का वैल्यू स्टोर्ड है। तो जब तक मैं कमांड हिस्ट्री क्लियर नहीं करूंगा तब तक मेरा a और c का वेरिएबल का वैल्यू 7 और 3 ही रहेगा। एक बार मैंने कमांड हिस्ट्री क्लियर कर दिया क्लियर हिस्ट्री में, नाउ आई टाइप a प्लस सी, तो भी 10 आ रहा है। आना नहीं चाहिए था, ठीक से आ रहा है। अच्छा वो यहाँ पे वो वेरिएबल्स का वैल्यू स्टोर किया हुआ है इसमें, इसके लिए आ रहा है। ओके ओके, ठीक है, तो वो तुमको फाइन, तो वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पुराना वैल्यूज लेगा जब तक तुम लोग वहां पे नया वैल्यूज नहीं डालोगे तब तक। So now I'll try to get it done in the Scilab का cloud. Let us see कि अभी वो एग्जीक्यूट करके दिखा रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक, जब क्लाउड में लिखोगे तभी वो ब्रैकेट का भी लिबर्टी नहीं है। ओपनिंग ब्रैकेट डाला है तो क्लोजिंग ब्रैकेट ऑटोमेटिकली आता है, वैसा नहीं है, वो तुम लोग को डालना पड़ेगा। वो जो भी लिबर्टी है वो खाली वो उसका फाइल में है, सॉफ्टवेयर का फाइल में। ठीक है, दिस मच इज क्लियर।
इसका स्क्रीनशॉट हो गया रहेगा तो इसको मैं क्लियर कर दूं. I'll delete all this if you have taken the screenshot of this. Yes sir. Okay. Fine. सर Now we will- प्रोग्राम रन कैसे करने का? प्रोग्राम दिखाता हूं मैं वापस से, रुको. ओके, अभी वापस दिखाता हूं. Now see what we will do. Now we will discuss some of the functions like square root find करना है, absolute value find करना है, remainder find करना है. Then कल जो हम लोग ने थियरी में फ्लोर और सीलिंग किया था, वो अगर तुम लोग को फाइंड करना है तो how you can do that we will see it now. So first what I do is I take the value of a as 9, b I take it as square root of a. So square root of a, this will give me sqrt. Sqrt is the function which gives me the square root of the number a. Okay, sqrt gives me square root of a. Display b. अभी run कैसा करना है, that was the question. ये मेरा प्रोग्राम हो गया. अभी एग्जीक्यूट करके दिख रहा है. आर यू एबल टू सी दैट? मेरा जो माउस का पॉइंटर है ये प्ले का बटन पे है. यस सर. इसको प्रेस करोगे तो अभी मैंने चेंजेस करने के बाद सेव नहीं किया था, इसके लिए वो मेरे को पूछ रहा है, डू यू वांट टू सेव द मॉडिफिकेशंस बिफोर एग्जीक्यूटिंग द फाइल. ओके, ये प्ले के बटन के बाजू वाला जो बटन है जहाँ पे प्ले का बटन और वो छोटा सा बॉक्स है, उस पे प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली उसको सेव भी कर देगा और उसको एग्जीक्यूट भी कर देगा. और कंसोल में जाके उसका आउटपुट देखना है तो यू कैन सी कि मेरे को आंसर आ रहा है 3, क्योंकि मेरा a का वैल्यू था 9, तो 9 का स्क्वायर रूट इज 3. करेक्ट? Yes, sir. तो मेरे को जब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, आई एम जस्ट गेटिंग अ कॉल फ्रॉम द कॉलेज. जस्ट yes, sorry, am I audible? Yes sir. You are able to see the screen also, right? Screen is visible. Okay,
So I was telling square root find करना है तो we use the function sqrt. So sqrt of a gives me the square root of the number a. तो a का वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर रूट आता है 3. ओके. नाउ सपोज मैं अगर a का वैल्यू 9 से चेंज करके -16 करता हूं, व्हाट आंसर आई शुड गेट? कैन यू टेल? 9 की जगह पे a का वैल्यू मैं लेता हूं -16. व्हाट आंसर आई शुड गेट? -16 का स्क्वायर रूट क्या आना चाहिए? Four. 4. 4i. Four I. Yes, sorry again. So yes, we were discussing about that -16. तो -16 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा?
4 into I, sir. 4 I. 4i. Okay, let us see. राइट, यू गेट 4i, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो इमेजिनरी में जाता है. बट तुम लोग अगर कैलकुलेटर यूज करोगे तो तुमको 4i मिलेगा क्या? -16 का स्क्वायर रूट. नॉर्मल कैलकुलेटर जब यूज करते हो. No, sir. कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ. नॉर्मल कैलकुलेटर तुमको -16 का स्क्वायर रूट भी 4 दिखाएगा, बट वो लेफ्ट हैंड साइड पे तुमको एक ई करके दिखाता है, विच इज योर एरर का साइन. ओके, दैट यू कैन चेक. तो कोई भी एक नॉर्मल कैलकुलेटर ले लो, उसमें एक नेगेटिव नंबर डालो और उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का ट्राई करो, तो तुमको आंसर दिखाएगा स्क्रीन पे, बट लेफ्ट हैंड साइड पे एक ई का सिंबल भी दिखाता है. दैट इज फॉर योर एरर, क्योंकि वो एरर सिर्फ एरर दिखा. सॉरी, सिर्फ एरर दिखा रहा है सर. अच्छा, सिर्फ एरर दिखा रहा है, क्योंकि मेरे पास एक कैलकुलेटर था, उसमें वो 4 दिखाता था और एरर दिखाता था. -16. ओके, अब यहाँ पे मेरे कंप्यूटर में भी वो इनवैलिड इनपुट दिखा रहा है. ठीक है. So some of the calculators give you the answer and some of the calculators will directly show you an error. But Scilab is a mathematical software. In fact, तुम लोग तुम्हारा C प्रोग्रामिंग में भी ट्राई करके देखो, वहां पे भी यू आर यूजिंग द सेम फंक्शन, राइट? SQRT यूज करते हो ना वहां पे भी स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए. तो तुम लोग उधर भी चेक करके देखो कि SQRT ऑफ -16 तुमको आंसर देगा कि नहीं देगा. 99% वहां पे भी तुमको आंसर नहीं मिलता है सी प्रोग्रामिंग में भी, स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर का, क्योंकि वो एक फंक्शन है जिसका कोड लिखा हुआ है जहां पे वो खाली पॉजिटिव वैल्यूज ही एक्सेप्ट करता है. आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली फॉर सी प्रोग्रामिंग क्या आता है, बट यू कैन चेक. 99% वो सी प्रोग्रामिंग में भी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर कैलकुलेट नहीं करते, बट यू कैन क्रॉस चेक वंस. But this is basically a mathematical software, you can say. इसके लिए इसमें there is no worry about that. You can easily get the square root of negative numbers. अगर तुम लोग perfect square नहीं भी डालते हो, see 16 की जगह पे मैंने 8 डाला तो भी मेरे को आंसर देगा वो. See 2.824271i, क्योंकि मैंने वहां पे -8 डाला, इसके लिए वो मेरे को i भी दे रहा है. Okay, so this is how you can find out the square root of a number. SQRT function use करेगा तो it will give you the square root of the number. लाइन नंबर 4 में भी देखो मैंने SQRT लिखा हुआ है, बट उसका कलर चेंज नहीं हुआ जैसा मेरा लाइन नंबर 2 में हो रहा है. लाइन नंबर 2 में जो कलर चेंज हो रहा है SQRT का, वो लाइन नंबर 4 में नहीं हुआ. व्हाट डज दैट इंडिकेट? कैन एनीवन टेल? Case sensitive. Case sensitive, very good. Scilab is a case sensitive language. That means your small letters and capital letters will be considered as two different characters. ठीक है, जैसा तुम्हारा C प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, Scilab is also case sensitive. So remember that Scilab is case sensitive. तो जो भी हम लोग को एग्जीक्यूटेबल फंक्शंस है वो सब कुछ अपने को स्मॉल लोअर केस में लिखना है. कैपिटल में लिखा तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है. एंड दिस बेसिकली इंडिकेट्स कि वो केस सेंसिटिव है. तो मेरा कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, they will be treated as two different variables. Okay, capital A and small a will be treated as two different variables. So in very simple words,
You can tell that Scilab is a case sensitive language. ठीक है? Okay, so I'll erase this. स्क्वायर रूट हो गया. उसके बाद क्या करना था अपने को? पावर. पावर तो हम लोग ने डिस्कस किया. पावर के लिए वी यूज द कैप रूट. पावर के लिए वी यूज द कैप रूट. स्क्वायर ऑफ a raised to 2 लिखा तो इट विल गिव मी स्क्वायर ऑफ a. तो पावर के लिए कैप रूट यूज करना है. कैप रूट इज बेसिकली अबव योर डिजिट 6 ऑन योर कीबोर्ड. कंप्यूटर की कीबोर्ड की बात कर रहा हूँ, मोबाइल कीबोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ. मोबाइल कीबोर्ड में तुम लोग को कैप रूट का साइन के लिए अलग से वो बटन प्रेस करना पड़ता है जिससे वो दूसरे कैरेक्टर्स आ जाते हैं. ठीक है? तो कैप रूट इज योर पावर फंक्शन. सी प्रोग्रामिंग में तुम लोग POW फंक्शन यूज करता है पावर के लिए, राइट? POW ब्रैकेट a,2 will give you square of a if you are using your C programming. But यहाँ पे you have to use your cap root का sign. This will be mathematical calculations के लिए, equations लिखने के लिए. This will be very convenient. Later on, after 1 or 2 practicals, we will see कि तुम लोग को जो रूट फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग में, that minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a, वो फॉर्मूला यूज करके जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करते हो, द सेम थिंग यहाँ पे एक फंक्शन तुम लोग लिखो और तुमको उसका आंसर आ जाता है करके. दैट आई विल टेल यू लेटर ऑन. ओके, so that things would become much more easier because all these are inbuilt functions जो वो सब प्री डिफाइंड है, कीवर्ड्स में प्री डिफाइंड है वो. so it would be much more easier. but उसको see everything has its advantage and it has its disadvantage. जैसे सी प्रोग्रामिंग में तुम लोग को रूट फाइंड करना है तो तुम लोग को उसका कोड लिखना पड़ेगा, तो वो कोड तुमको याद रहना चाहिए. यहाँ पे वो कोड तुमको याद नहीं भी रहा तो इट्स ओके, बट तुमको वो फंक्शन याद रखना है कि कौन सा फंक्शन यूज करेगा तो मेरे को क्या चीज मिलेगा करके. तो इन दैट सेंस दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर दैट. ठीक है? ओके, तो स्क्वायर ऑफ ए हो गया, पावर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू. एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए static ds minus 9. ABS is the function. ABS gives the absolute value of E. Now, since we had discussed this absolute value in our theory class, I hope you would be remembering the absolute value क्या होता है. So ABS gives me the absolute value of D. ठीक है? ABS will give me the absolute value of D. अभी इतना हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं आंसर्स क्या आता है. Before that, I will clear the console का screen so that there should not be any confusion. Okay, now अभी मेरे को इसको रन करना है. So there are many ways. मैं डायरेक्टली कीबोर्ड से F5 प्रेस करूं तो भी वो हो जाएगा, या तो यहाँ पे मेनू में जाके मैं उसको सेव एंड एग्जीक्यूट करूं, और आई विल फर्स्ट सेव द फाइल और बाद में उसको मैं एग्जीक्यूट करूं. ओके, बाद में उसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो भी चलेगा. Now one more thing, like one of your friend has asked कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. अभी मैंने फाइल में चेंजेस किया हुआ है, राइट? अभी वो मेरा फाइल सेव किया है कि नहीं किया है कैसे पता चलेगा? Just concentrate on the name of the file which has been written लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे.
लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पे फाइल का नाम दिख रहा है Scilab 2122.sce. Are you able to see that? Yes, sir. That .sce is basically the file extension जो अपने को concentrate नहीं करना है. वो डिफॉल्ट केस में आता है Scilab का. जैसे वर्ड का फाइल तुम लोग सेव करोगे तो .docx होता है. एक्सेल का फाइल सेव करोगे तो .xlsx होता है. करेक्ट. वैसे वो इसका एक्सटेंशन है. बट अभी वो Scilab का लेफ्ट में देखो एक स्टार दिख रहा है तुम लोग को. जो फाइल नेम है Yes, sir. उसका लेफ्ट साइड पे देखो. आर यू एबल टू सी दैट एस्टेरिस्क का साइन? यहाँ पे देखो जहां पे मेरा कर्सर है. अच्छा वो चले गया. मैं वापस से ट्राई करता हूँ. ठीक. Is that star visible left of the word Scilab? Yes, sir. Yes, sir. That is basically indicating कि वो मैंने जो corrections किया वो सेव नहीं हुआ है. Now see I press Ctrl S तो स्टार चले गया करके. तो जब वो स्टार नहीं रहेगा दैट मीन्स तुम्हारा जो फाइल है वो सेव किया हुआ है. स्टार रहेगा मीन्स तुमने जो करेक्शंस किए हैं वो सेव नहीं हुआ है. नाउ आई विल एग्जीक्यूट इट. एज आई सेड आई कैन डू इट यूजिंग मेनी टेक्निक्स. कीबोर्ड से मैं F5 प्रेस करूंगा तो भी मेरे को आ जाएगा. एक अच्छा मैंने पहले ऑलरेडी प्रेस किया हुआ था इसके. एक मिनट. आई जस्ट एग्जीक्यूट इट. दिस आर द आंसर्स. -8 का स्क्वायर रूट, -8 का स्क्वायर and absolute value of -9. Absolute value of -9. This is what is the answers which I get. Is this clear? You can take the screenshot of this program also. Excuse me, sir. Yes. सर मैं अभी सेव किया बट रन नहीं हो रहा सर वो. सेव किया बट रन नहीं हो रहे. तुम डेस्कटॉप में कर रहे हो मतलब कंप्यूटर में कर रहे हो कि क्लाउड में कर रहे हो? सर रन नहीं हो रहा वो प्रोग्राम. हाँ तो कंसोल में जाके देखो कुछ एरर आ रहा है क्या? ओके सर. वो तुमको रन करके ऑटोमेटिकली उधर नहीं जाते. तुमको कंसोल में जाना पड़ेगा उसका आउटपुट देखने के लिए. Whatever means you apply to execute the program, उसका आउटपुट देखने के लिए तुमको कंसोल में जाना पड़ता है. Tell me the answer what you are getting, like feedback दो क्या आ रहा है तुमको. Are you getting?
Okay, shall we proceed? Yes, sir. ठीक है, so we have discussed about power, square root and absolute value function. Now we will discuss about the modulo function. So I'll erase this. I'll take A as say 25, B as 6, C equals to modulo A comma B. Modulo function gives the remainder when A is divided by B. It gives us the remainder when A is divided by B. हम लोग ने थियरी लेक्चर में भी जो मॉड फंक्शन देखा था, A is congruent to B mod n. तो सेम थिंग, वहां पे भी रिमाइंडर रहता है. ये मॉडुलो फंक्शन आल्सो गिव्स यू द रिमाइंडर. सी प्रोग्रामिंग में रिमाइंडर फाइंड करने के लिए यू यूज द परसेंटेज ऑपरेटर, राइट? यू यूज द परसेंटेज ऑपरेटर in your C programming for finding the remainder. Scilab में we will take the help of the modulo function for finding the remainder. ठीक है, तो C is modulo A comma B. So modulo function gives us the remainder when A is divided by B. Remainder when A is divided by B is equal to C. ओके, यहाँ पे एरर आ रहा है मेरे को. आई एम गेटिंग एन एरर. वो एरर आ रहा है क्योंकि डिस्प्ले स्टेटमेंट में वो हाईलाइट भी करके दे रहा है. ओके, एरर डिस्प्ले भी करके दे रहा है. See, this is what is the answer. 1 क्यों है? 25 को 6 से डिवाइड किया. ओके, सो हाउ विल आई राइट माय डिस्प्ले स्टेटमेंट? जो भी मेरा टेक्स्ट है आई विल इनक्लोज इन डबल कोटेशन. उसके बाद आई पुट अ कॉमा. सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ में तुम लोग को सेमीकोलन डालना होता है, करेक्ट? सी प्रोग्रामिंग में प्रिंटफ में तुम लोग को सेमीकोलन डालना होता है. यहाँ पे हम लोग कॉमा यूज करता है. कॉमा सी डाला तो वेरिएबल का वैल्यू भी डिस्प्ले होगा और वो मैसेज भी डिस्प्ले होता है. बट कैसा डिस्प्ले होता है? सी जो आंसर है वो ऊपर आ रहा है और मैसेज नीचे आ रहा है. ये इसका फॉर्मेट है कि एक ही स्टेटमेंट में अगर तुम लोग दोनों चीज डिस्प्ले करना है तो आंसर ऊपर आएगा और उसका मैसेज नीचे आता है. ठीक है, आंसर ऊपर आएगा और उसका मैसेज नीचे आता है. अगर तुम लोग को आंसर नीचे चाहिए, मैसेज ऊपर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? दो स्टेटमेंट यूज करो. एक ऐसा लिखो और दूसरे में खाली वेरिएबल लिखो. just clear this part. Now you can take. This is what is the difference. You can observe the difference. एक ही डिस्प्ले स्टेटमेंट लिखा तो क्या होता है? मेरा आंसर पहले प्रिंट होता है, उसके बाद वो मैसेज डिस्प्ले होता है. मेरे को अगर मैसेज पहले चाहिए और वैल्यू बाद में चाहिए तो फिर मेरे को दो अलग अलग डिस्प्ले स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा. ठीक है, मेरे को दो अलग अलग डिस्प्ले स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा. इज दिस फाइन? एक ही डिस्प्ले स्टेटमेंट में करना है तो क्या होता है? आउटपुट में मेरा आंसर पहले डिस्प्ले होगा और नेक्स्ट लाइन में मैसेज डिस्प्ले होगा. बट जनरली वी हैव
हैबिट एंड इट लुक्स बेटर कि पहले मैसेज डिस्प्ले हो और उसके बाद उसका आंसर डिस्प्ले हो। तो फिर एक डिस्प्ले स्टेटमेंट में वो मैसेज लिखना है, दूसरा डिस्प्ले स्टेटमेंट में उसका वेरिएबल का नाम लिखना है। इज दिस पार्ट क्लियर? Yes, is this clear? Hello? Yes. Yes, नहीं कुछ रिप्लाई नहीं आया तो आई थॉट कुछ प्रॉब्लम है क्या करके। So this much is clear, right? Okay, before we proceed to the next part, तब तक तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आउटपुट भी दिखाता हूँ। If anyone has any doubts, you can clear your doubts. Yes, anyone has any doubts till now? ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो and then you can take the output का स्क्रीनशॉट। सर 1 आंसर कैसे आया? 25 को 6 से डिवाइड किया ना, 25 को 6 से डिवाइड किया। ओके सर। Okay, fine. Now we will, in the same program, we will discuss about the floor function and the ceiling function. So floor के लिए I use the floor word. That is what is the function. So what is the floor? Floor gives the largest integer less than or equal to x. Floor of x gives me the largest integer less than or equals to x. Okay, let us see कि अपने को क्या आंसर मिल रहा है उसका। सॉरी, वो कुछ तो इनकरेक्ट नंबर ऑफ, ओके फाइन। फ्लोर में उसका फॉर्मेट गलत था ना, एक मिनट। ओके, नाउ लेट मी चेक। हाँ, तो मेरे को 4 मिला। 25 divided by 6 is 4 point something, correct? 25 divided by 6 is 4 point something, तो उसका 4 point जो है उसका आंसर मेरे को ये आ रहा है। तो आई राइट इट लाइक दिस, A divided by B and I write floor of Q. Display Q. So we can see define variable Q. Okay. Equal to नहीं करना। Now see,
ये तो ऊपर का रिमाइंडर है, ये देखो दिस इज 4.166667. 4.166667 is basically my 24 divided by 4 का वैल्यू, 25 divided by 6 का वैल्यू, और उसका फ्लोर gives me the answer as 4. Right? 25 divided by 6 gives me 4.166667 और उसका फ्लोर gives me 4. Fine. वैसे ही I can go for the ceiling. Ceiling के लिए I will use the function ceil. Okay, ceiling के लिए I will use the function ceil. Ceiling of x gives the smallest integer greater than or equal to x. You can see 4.1667 का seal, that is ceiling, gives me the answer as 5. Yesterday also we have discussed in the theory class about the ceiling and floor function. Right? About this ceiling and floor function. So is this clear? Okay. Now tell me, with whatever functions we have discussed till now, for getting the remainder we use the modulo function, right? Getting the remainder we use the modulo function. But can you tell how do we get the quotient for the fraction? How do we get the quotient? कौन सा function use करेगा तो quotient मिलता है? With whatever things we have discussed till now, कौन सा function use करेगा तो मेरे को quotient मिलेगा? This is what is the output part. If you want I can show you the code part also, जहाँ पे साइन नोट्स ये जो कोड्स लिखे थे, just a second, let me check दोनों चीज साथ में दिखेगा क्या? Okay, fine. You can see both the things, output as well as code. So जो भी functions आज हम लोग ने डिस्कस किया है, can you tell me कौन सा function यूज करेगा तो quotient मिलेगा? For getting the remainder, we use the modulo function. Can you get the quotient by using some of the functions which we have discussed? Yes, anyone?
Yes, yes. Divide. Tell. If I want to find the quotient when say 25 is divided by 6, तो कोई फंक्शन यूज करके मेरे को क्वेश्चन मिलेगा? It's there in fact on the screen. अगर मेरे को क्वेश्चन फाइंड करना है when 25 is divided by 6, तो कौन सा फंक्शन यूज करना है? रिमाइंडर फाइंड करना है तो सॉरी, उसको फाइंड करने के लिए 7th लाइन में जो फंक्शन है ना a डिवाइडेड बाय b, a डिवाइडेड बाय b, वो तो नॉर्मल डिवीजन है। सी अगर मैं वो तो नॉर्मल डिवीजन है ना, वो तो मेरा 1 मिनट ये मैं सब क्लियर करता हूँ। यहाँ से मैं कोड में गया, ये जो ऊपर वाले डिस्प्ले स्टेटमेंट है उसको 2 मिनट के लिए मैं ये कर देता हूँ। ठीक है, सब डिस्प्ले स्टेटमेंट को मैंने कमेंट में डाल दिया। यू आर टेलिंग लाइन नंबर 7 इज q, दैट इज a अपॉन b। 9 में 7 तो वो लाइन नंबर 7 का वैल्यू मैंने लाइन नंबर 9 में डिस्प्ले किया ना। तो देखते क्या आंसर आता है। 4.16667। तो क्वोशंट नहीं हुआ, वो तो फ्रैक्शन का वैल्यू हो गया, वो तो फ्रैक्शन का वैल्यू हो गया। मेरे को क्वोशंट चाहिए खाली। मेरे को क्वोशंट चाहिए, फ्रैक्शन का वैल्यू नहीं चाहिए। Yes, I think someone gave the answer. I didn't heard it properly, so I'm not sure. Floor function. Function, very good. Floor function gives us the quotient when a is divided by b. Now see line number 10 में when मैं वो नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट निकाल देता हूँ, तो यू कैन सी मेरे को 4.1667 फ्रैक्शन का वैल्यू मिला, और उसका फ्लोर मैंने जब लिया तो मेरे को 4 मिला। तो दिस फ्लोर फंक्शन कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फाइंडिंग द कोशेंट। Again I repeat, floor function can also be used for finding the quotient when the number a is divided by b. ठीक है, floor function gives me the quotient when the number a is divided by b. Is it clear? Okay.
Now can you find out the remainder when 25 is divided by 6 without using the modulo function? Can you find out the remainder when 25 is divided by 6 without using the modulo function? Modulo function यूज किया तो डायरेक्टली मेरे को आ जाता है रिमाइंडर, बट विदाउट यूजिंग द modulo function can you get the remainder when 25 is divided by 6? Yes. How? Tell me the steps. By using floor and scale function. By using your floor function. Okay. How? Okay, what we will do is ये वाला जो पार्ट है वो तुम लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं इतना सब इसको इरेज कर दूं, लाइन नंबर 3 से नीचे तक सब इरेज कर दूं. If you have taken this screenshot, can I erase this from line number 3 to 12? Erase कर दूं? Yes, sir. चलो, A 25 है, B 6 है. मेरे को फाइंड करना है to find the remainder when 25 is divided by 6 without using the modulo function. Tell me the steps now. Using the modulo function, it is quite easy. I just write modulo 25,6. I get my answer. I write modulo 25,6, I can easily get the answer. But without using the modulo function, how can I get the remainder when 25 is divided by 6? Think till then I will take your attendance. Yes, someone gave the answer also, but I want the steps.
Yes, anyone? It's quite simple. So I'll write. Yes, can anyone tell what is the division algorithm which we had discussed? Division algorithm. What does division algorithm says? हम लोग भी थियरी में डिस्कस किया था. Anyone? Yes, anyone? What is the division algorithm which we have discussed in the class? A equals to B into Q plus R, where Q is the quotient and R is the remainder. So R को I can write it as A minus B multiplied by the quotient. So quotient is what? Floor of A by B. Display remainder is equal to, see, this is how you get the remainder without using the modulo function. डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है. A equals to BQ plus R. R रिमाइंडर है तो R कैन बी रिटन एज A minus BQ और Q इज योर कोशेंट. कोशेंट फाइंड करने के लिए जस्ट नाउ वी डिस्कस कि हमको फ्लोर फंक्शन यूज करना पड़ता है. तो A minus B into floor of A upon B will give me the remainder. Is this clear? Yes. So these are some of the small codes, or you can say small calculations which you have to do, because in your exam also you may have a question of this kind. Find the remainder when 25 is divided by 6 without using the modulo function. क्योंकि modulo function लिखा तो कुछ करना ही नहीं है, खाली modulo A, B लिख दिया तो मेरे को आंसर आ जाता है. करेक्ट?
So this is how you can write down the code for getting the remainder without using the modulo function. Is it clear? Okay. So what I will do is I will stop here for the day. Okay, I'll leave you early today because last batch में भी practicals यहाँ तक हुआ था. So I don't want to mismatch the things.